फाउंडेशन के ऑडिटोरियम में मोज़ेक कंपनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित अवार्ड सेरेमनी में युवा कृषि वैज्ञानिकों को प्लांट न्यूट्रिशन पर विशेष शोध के लिए अवार्ड प्रदान किए गए। इस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर MC मीना और डॉक्टर मोहम्मद शाहिद को प्रदान किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरेट थीसिस पुरस्कार डॉक्टर देवरूप दास, डॉक्टर नंद किशोर थोम्ब्रे और डॉक्टर भाग्यश्री ननकर्णी को प्रदान किया गया। पुरस्कार में नगद राशि, सर्टिफिकेट, स्वर्ण पदक और ब्लेजर दिया गया। इस पुरस्कार समारोह की शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए फसल क्रांति के संवाददाता इमरान और फिजा काजमी ने इसके आयोजकों एवं विजेताओं से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति और इस समय मैं मौजूद हूं द मोज़ेक कंपनी फाउंडेशन की अवार्ड सेरेमनी में। क्यों इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, क्या कारण है और क्या इनिशिएटिव है इसके पीछे, हर एक चीज़ की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देंगे और बताएंगे कि किस लिए और किन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे जो खास मेहमान हैं मौजूद हैं वो है मिस्टर बेन प्रेट। ही इज़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट पब्लिक अफेयर्स मोज़ेक कंपनी। हमारे साथ हैं एडविन सर मोज़ेक कंपनी से, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में कंपनी के बिजनेस के लिए। देन हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जय सहगल, जो कि SM सहगल फाउंडेशन से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे मिस्टर बेन प्रेट जी के साथ। क्या है इस मोज़ेक कंपनी, जानेंगे उनसे विस्तार पूर्वक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन फसल क्रांति चैनल। सो प्लीज टेल अस अबाउट द मोज़ेक कंपनी एंड अबाउट yourself. How are you associated with the Mozaik company? I work for the Mozaik company. We're headquartered in the United States. I live and work in the United States, and my job is to oversee all of our community work as well as our sustainability work and communications and government affairs. But this particular part of my work, working with the Sehgal Foundation on Indian agriculture and trying to help smallholder farmers improve their livelihoods, is an incredibly gratifying part of what we do. Mozaik is one of the biggest fertilizer companies in the world. We make and sell 25 million tons of fertilizer every year. But the few tons of fertilizer that we send here for this program that get used to vastly improve lives of rural Indians is incredibly gratifying for us. Thanks for the valuable information. I would like to ask you about the company's operation in especially in Asian countries, how it is performing, and what kind of products is this company manufacturing for the agriculture sustainability and the farmer benefits. Sure, we make two kinds of fertilizer primarily. We make phosphate and potash fertilizers, and we ship them all over the world. And we ship them to all the countries in Asia that have significant agriculture. India is our biggest market in India, and China are our biggest markets in Asia. But the company is doing very well here. The demand and prices for fertilizers are running very high right now, and so we feel like the company is performing really well, and it's good for us to give back to the societies in these regions. What would you like to say about this award ceremony organized by the Mozaik in association with SM Sehgal Foundation? We're very proud of this award. It's part of our commitment to ensuring that science, advancements in agricultural science are recognized. I'm especially proud of the Young Scientist Award and the New Women in Science Award, because we like to encourage young scientists to continue what they're doing and to make big advancements in the way agriculture performs for the future. Thank you for being with us and for your valuable comments on this event and the India about the Mozaik company. So अब हम बात करेंगे एडविन सर से कि क्या कारण था, किस तरीके से इस इवेंट की शुरुआत हुई। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो मोज़ेक के साथ आपका एक जुड़ाव हुआ, तो उसके बाद कैसे ये इनिशिएटिव लिया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? एक बहुत अच्छा सवाल है कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत। मोज़ेक 20 साल से इंडिया में फर्टिलाइजर्स खाद बेचते हैं, राइट। तो हम 2010 तक फॉस्फेट में सबसे ज़्यादा किसानों के लिए जो सप्लाई करते थे, मोज़ेक ही इंडिया में सप्लाई करता था। 2014 में हमने सोचा था कि हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे
ये सॉइल हेल्थ और अपने देश की प्रोडक्टिविटी में बदलाव आए। तो हमने सोचा कि सबसे अहम इसका भाग होता है साइंटिस्ट कम्युनिटी का। तो ये वैज्ञानिकों का किस तरह से उनकी रिसर्च ने आज हमें इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट देश बनाया है। तो उसको हमने माध्यम रखते हुए हमने क्या किया, 2014 में ये मोज़ेक फाउंडेशन के द्वारा एक डॉक्टरल अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा पैनल, जूरी पैनल था, जिन्होंने हमें सलाह दिया था कि किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमारा इच्छा था कि इसे कुछ करे, पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह सलाह दिया था कि आप इस तरह से यंग साइंटिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए जो इस क्षेत्र में, जैसे सॉइल हेल्थ और प्लांट न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हो, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में रिसर्च की ज़रूरत है। देखिए, एक मुख्य कारण ये है, हम भी देख रहे हैं कि आज दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, राइट, सिटीज़ बड़े होते जा रहे हैं, और खेती करने का जो ज़मीन है वो या तो उतना ही है या तो कम हो रहा है। आज उसी ज़मीन में आपकी उत्पादकता और बढ़ानी है, आज बढ़ती हुई आबादी को आपको पोषण देना है, तो उसके लिए उस ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र पे जो रिसर्च हो रहा है उसको आगे जाके कोई भी देश के लिए फूड सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस अभी हम जो 7 साल में हमने जो इसमें अवार्ड दिए, करीबन 17 साइंटिस्ट को इस क्षेत्र में अवार्ड मिला है। आप देखेंगे कि जो रिसर्च पेपर सबमिट हुए हैं भारत में, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च इस क्षेत्र में ऑलरेडी हो रहा है। तो उसको रिकग्नाइज करके, उसको बढ़ावा देके इसके माध्यम से जो बेनिफिट आता है हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, एक मेरा सवाल आपसे है, व्हाई नॉट द फार्मर्स? सिर्फ वैज्ञानिक ही क्यों? ये तो अगर हम फार्मर की बात करें, ऐसा कुछ भविष्य में आपका प्लान है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी कुछ अवार्ड्स वगैरह इस तरीके के इस कार्यक्रम आप आयोजित करने वाले, क्या ऐसा कुछ प्लान नहीं? देखिए, आज की तारीख में अपने देश में बहुत अवार्ड्स हैं, राइट, गवर्नमेंट भी बहुत कार्य कर रहा है, बहुत अवार्ड्स दे रहे हैं। हमने इसका मुख्य उद्देश्य था कि साइंटिफिक कम्युनिटी को बढ़ावा देना है, ताकि उसमें रिसर्च हो गया कि आगे आने वाले समय में जब हमारी ज़रूरत है कि उपजाऊ शक्ति और प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, हमारा बहुत से कार्य किसानों के लिए हो रहा है, जहाँ पे हम इस जो नई तकनीक है एग्रीकल्चर की, उसको हम किसानों की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और बहुत से किसानों की तरफ से भी ऐसे तकनीक है जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, उसे भी हम बाकी किसानों को भी बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। बट ये जो सुझाव है आपकी, अच्छा आइडिया है, हम इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे। एडविन सर, एट द एंड मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक मोज़ेक कंपनी के बारे में, जो इंडिया में काम कर रही है कंपनी, खासकर के मैक को लेके, MOP को लेके, और ग्राउंड लेवल पे अब काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मोज़ेक कंपनी ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जैसे DAP का खाद भेजने का शुरुआत किया था 2002 में। हम कुछ क्षेत्र में इंडिया के 5 प्रदेशों में शुरू किया था। अभी हम DAP के अलावा पोटैश जो मोज़ेक बनाते हैं, आपने सुना, अभी बेन साहब ने कहा था कि हम करीबन 250 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में, और अभी हम वही टन हम इंडिया में भी लेके आते हैं। और भारत के 19 प्रदेशों में आज DAP, MOP और K-Mac जो एक स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र है, वो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको हम लेके आते हैं। इसके अलावा बहुत से कार्य होता है कि जहाँ पे फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है कि पोटैश की आज इस्तेमाल बहुत कम होती है, पर हम जब इस्तेमाल करके देखते हैं तो उसमें बहुत सी यील्ड, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया है कि भारत में, कि किसानों को समझाएं कि जिस तरह से उनको ये फर्टिलाइज़र से फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। दर्शकों, अब हम चलते हैं जय सर के पास। ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फ्रॉम SM सहगल फाउंडेशन। सर, अगर हम बात करें, SM सहगल फाउंडेशन एग्रीकल्चर में काफ़ी काम कर रही है, और लगभग कई दशकों का ये एक पड़ाव रहा है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या इनिशिएटिव अभी तक SM सहगल फाउंडेशन के द्वारा एग्रीकल्चर में लिए गए? तो जो सहगल फाउंडेशन है, SM सहगल फाउंडेशन, ये हमारे डॉक्टर सूरी सहगल एक रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये संस्था शुरू की थी 2000 में।
और उसके बाद डॉक्टर सूरी सहगल जहाँ तक सारी ज़िंदगी उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया और उनका पैशन यही रहा कि कहीं भी जब भी उन्होंने काम किया उनका पैशन ये है कि वो किसानों को अच्छी तरह, क्योंकि अगर हमें देखा जाए कि जब जो किसान हैं उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ कम है, तो क्यों डॉक्टर साहब ये सोचते हैं कि भी हम सीड कंपनीज चलती हैं, उन्होंने कभी काफ़ी सीड कंपनीज में काम किया, काफ़ी उनका लाइफ सीड कंपनी बनाने में रहा, मगर जब उन्होंने ये काम फिनिश किया उसके बाद बोला कंपनियां तो अच्छा कमाती हैं पर किसान के पास जो उनकी आमदनी है वो बढ़ती क्यों नहीं है। तो इसके कारण उन्होंने सहगल फाउंडेशन संस्था जो शुरू की और सबसे पहले उन्होंने यही किया कि यहाँ पे हमें किसानों के साथ काम करके उनको देखना है कि कैसे हम उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अब ये मेन ऑब्जेक्टिव जो सहगल फाउंडेशन का, तो तभी हम जो गांव की संस्था और गांव की स्थिति सब कुछ अच्छी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा शुरुआत हुई और इसके साथ साथ काफ़ी काम होते हैं हमारे गांव में हमारा काम है उनको बताना है, उनकी सॉइल के बारे में बताना कि सॉइल में क्या क्या कमी है और सॉइल को हेल्थ के बारे कैसे क्या ऐड करना चाहिए, क्या उसमें डालना चाहिए कि सॉइल की हेल्थ अच्छी बने। उसी के साथ साथ उनको जो अच्छा बीज जो मिलना चाहिए, अच्छी क्रॉप जो उन्होंने फर्टिलाइज़र केमिकल्स उसमें डाल, तो उसकी पढ़ाया जाता है किसानों को अच्छी तरह उसके ऊपर में। इसी के साथ साथ पानी की बहुत संस्था है और खेत अगर पानी नहीं है तो खेती भी नहीं है, तो हम अच्छी तरह किसानों के साथ मिल के उनको ये बताते हैं कि भाई कि पानी टपक सिंचाई यूज़ करना चाहिए, फुहारे यूज़ करना चाहिए, जो कम से कम जितना पानी यूज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्रॉप हो सके उस पर हम काम करते हैं। सर जो हमारा वैज्ञानिक समुदाय है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें उसको बढ़ावा देने के लिए, खासकर जैसे कि सर एडविन सर ने भी बताया, जो यंग हमारी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर अपना एक कमेंट। हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यंग साइंटिस्ट जो हैं हमें चैलेंजेस डेली आ रहे हैं। यहाँ पे आजकल के देखो क्लाइमेट चेंज में बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण खेती पे इम्पैक्ट बहुत आ रहा है। इसीलिए हमें नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जो साइंटिस्ट को इनकरेजमेंट करना कि ये जो चैलेंजेस आगे आने वाले हैं उनको हम कैसे संभाल सकें और अच्छी पैदाइश हो, कि उसमें अच्छा प्रोडक्टिविटी हो किसानों की, क्योंकि साहब ने बताया अभी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपनी खेती के लैंड जो है वो कम हो रही है और हमें इसको, और अगर खेती नहीं बढ़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये यंग साइंटिस्ट जो हैं ये सारा उनके हाथ में है कि वो कैसे कैसे रिसर्च करें, अच्छी तरह वो जो प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, जो टेक्नोलॉजी लेके आनी है कि किसानों का काम अच्छी तरह हो सके। सो वो उसके लिए बहुत एक एनकरेजिंग थिंग है फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच सर फसल क्रांति के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जय सहगल सर, एडविन सर एंड ब्रेंड सर, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध कराई। स्वागत है आपका फसल क्रांति में, मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। सहगल फाउंडेशन और मौजिक की ओर से सम्मानित किए गए अवार्ड्स में कई साइंटिस्ट को अवार्ड्स दिए गए, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब महिलाओं को भी सम्मानित करने का फाउंडेशन के बारे में फाउंडेशन ने सोचा और ये फाउंडेशन ने करके भी दिखाया। हमारे बीच ऐसी पहली महिला मौजूद हैं जिसके फाउंडेशन की ओर से पहला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका फसल क्रांति पर। तो ये तो पूछना आपसे बहुत ही ज़्यादा लाजमी सी बात है कि अवार्ड मिलने की अपने आप में ही खुशी होती है, लेकिन जो उसके पीछे का काम होता है, उसके पीछे की लगन और मेहनत होती है, वो जानना हर किसी के लिए एक दिलचस्प बात होती है। तो हम जानेंगे कि कैसा रहा है ये जर्नी, किस तरीके से मेहनत करके उन्होंने इस अवार्ड को हासिल किया है। हेलो, नमस्कार। एंड पहले तो मैम अपना नाम बताएं और किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला ये बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर भाग्यश्री हेमंत नाडकर्णी और मुझे आज मोज़ेक कंपनी फाउंडेशन अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल वर्क इन द एरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। और ये अवार्ड अभी वुमेंस कैटेगरी में मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला है।
और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मतलब मुझे अवार्ड मिला है और आज मतलब नेक्स्ट ईयर से अभी ये फुल फ्लेज वो वुमेंस कैटेगरी में अवार्ड शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और रिसर्च में हम एफ़र्ट्स तो बहुत लेते हैं, लेकिन वो एफ़र्ट्स को जब रिकॉग्निशन मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात रहती है। और रिसर्च के टाइम पे मैंने यही मतलब मेरे जो गाइड और टीम मेंबर्स थे उनसे यही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कशन किया था कि जैसे हमें प्लांट की हेल्थ की हम फ़िक्र करते हैं, वैसे पहले सॉइल के हेल्थ की फ़िक्र करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर अर्थ ने आज तक हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। और हरित क्रांति के बाद में अब बहुत सालों तक हमें बहुत ज़्यादा फसल की ये मिली है, फसल की गुणवत्तापूर्ण फसल मिली है, लेकिन अभी ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये हम सबका परम कर्तव्य है कि हम लोग जो ज़मीन है उसके हेल्थ की इम्प्रूवमेंट पे काम करें। और मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो भी उसी पर बेस्ड था। उसमें मेरा रिसर्च वर्क ऐसे था कि हमने जो जनरली फार्मर एक बार में ही बेसल डोज में ही जो खाद रहती है उसकी मात्रा पूरी दे देते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लीचिंग लॉसेस होते हैं, उसमें वाटर बॉडीज़ पोल्यूट होती है और ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमने क्या किया है रिसर्च वर्क के तौर पे, हमने 4 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें स्प्लिट में अगर हम खाद की मात्रा देते हैं तो उससे फसल को और ज़मीन को उसका कैसा फ़ायदा होगा, ये हमने रिसर्च में रिजल्ट्स में प्रूव किया है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे अभी वुमेंस कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिला है और खेती में बहुत सारी महिलाएं बहुत सालों से काम कर रही है, तो ये रिसर्च फील्ड में भी बहुत अच्छे से वुमेंस काम करे और देश का नाम रोशन करे, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा योगदान दे, बस यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन फसल क्रांति की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे तमाम महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर कृषि क्षेत्र में ही ना सिर्फ और क्षेत्रों में बल्कि कृषि क्षेत्र में भी अपना नाम कमाए, यही उम्मीद और आशा है। अनदर साइंटिस्ट हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है और इस अवार्ड के बाद क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजीज है और क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ रिसर्च वर्क रहने वाला है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद अभी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में सीनियर साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। वहाँ हम फसल उत्पादन प्रभाग में काम कर रहे हैं और ये मोज़ेक फाउंडेशन अवार्ड पाके हम काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोगों को पता चला वो बहुत ही फ्री और फेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया है। बहुत सीनियर लेवल के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। तो इसके लिए मैं मोज़ेक फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूं कि उसने हमको इस अवार्ड के लिए चुना है। और हमारा जो रिसर्च वर्क है, हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन, ये जो अवार्ड हमारा है वो यंग साइंटिस्ट अवार्ड मोज़ेक फाउंडेशन का मिला, जो कि प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित है। और प्लांट न्यूट्रिशन में हम लोग राइस क्रॉप के ऊपर में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से नाइट्रोजन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक कस्टमाइज्ड लीफ कलर चार्ट का डेवलपमेंट किया है, जो कि एक 5 पैनल का चार्ट है और जिसकी कीमत लगभग 120 रुपये है। और इस चार्ट को फार्मर को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिससे कि ये किसान अपना उसको फसल को कब और कितनी नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत है उस हिसाब से वो अपना खेत में वो नाइट्रोजन खाद का अगर उपयोग करेगा तो उससे उसके नाइट्रोजन खाद की जो हानि होती है वो हानि भी नहीं होगी और उसका जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो कलर चार्ट का निर्माण किया गया था। और एक और चीज़ ये है कि उस फसल चार्ट को अभी हम लोगों ने डिजिटल मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका नाम है राइस एंड एक्सपर्ट, जिसको कि गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको अपने खेत में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नाइट्रोजन खाद की
रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए क्रॉप किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फसल क्रांति की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कृषि संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।